Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters. My name is Muhammad Salar Faik and I am from Karachi, Pakistan. Previously, I have noticed that no one takes interest in history, but now history is much important because in history it is about Islam. It is other things which we have to learn where they are very important. We have to take knowledge from it, and my interest is in history except the other subjects. I love other subjects and I'm working on that, but I am working much more on history, and right now I have launched history courses. So don't wait for me. Register now and we will study much more, and you will get to know so many things which you have never learned before, and we will have so much fun. The examples of what we will study in history are Christopher Columbus and how was America found, Native Americans, Roman Empire, ancient Greeks, and the Persian Empire, our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the rise of Islam, and the Nazi Germany, death of Hitler, like these type of things. So don't wait for me. Register now, and we will get to study so many things, and we will study together. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear brothers and sisters. So I'm sharing my screen. We will start our session. One minute. Yes. Can you hear me? Okay. So I will start. So we will start by the beginning of the galaxies or Big Bang Theory, basically. But first, I will introduce the level 1. मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा लेवल 1 की, जो मैंने बनाया जो हम लोग करेंगे इन वीक्स में, कमिंग वीक्स में. ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्जर्व थिंग्स which we are studying, make mind map and study topics seriously and make notes about it like this. Level 1. इन लेवल 1 हम लोग पढ़ेंगे कि जो है ना ये सैयारे और बिग बैंग किस तरह से हुई, क्या बिग बैंग वाकई में है, असली है, नहीं है, it is real or not, and before humans and animals, अर्थ कैसे बनी थी, इस तरह से, जिन्नात किंगडम, द पर्मियन पीरियड, डायनासोर एवोल्यूशंस, स्टोन एज, आइस एज, etc etc. So I hope that you would have understand. वैसे तो अभी आप लोग ये सारी चीजें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, लेकिन gradually and simultaneously when we will go forward ahead to our objective, so then you will understand all the things. और जो है ना मैं सेशन के आखिर में क्वेश्चंस भी पूछा करूंगा, तो आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा उसका. तो आप लोग गौर से सुनिएगा जो मैं बोलूंगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वी आर ऑन द बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी है क्या वैसे? बिग बैंग थ्योरी जो है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ मैं आप लोगों को. इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी, के जो सारे लोगों के दिमागों में आता है. Everyone thinks about it when everyone looks at Big Bang Theory, so directly they think कि what is Big Bang Theory actually. So Big Bang Theory is an explanation which the astronomers have given of how the universe began and how it was started by just a single point and then expanded and stretched and is stretching still. इसका मतलब है कि जो है ना वो एस्ट्रोनॉमर्स है ना, वो उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन बनाई है. जब भी देखें जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं या हिस्टोरियंस होते हैं, आई थिंक कि जो हिस्टोरियंस जो रिसर्च करते हैं ना, वो उसको रिसर्च तो कर लेते हैं, लेकिन जो आम लोग होते हैं ना, उनको अच्छे तरीके से समझ नहीं आती, क्योंकि वो इतनी रिसर्च नहीं करते.
ना वो इतने ज़्यादा पढ़ते हैं उसके बारे में बुक्स में, ना वो उनको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता होती है उनके बारे में। तो जो साइंटिस्ट होते हैं और कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो जो है ना एक चीज़ निकालते हैं। उस चीज़ का वो नाम है थ्योरी। थ्योरी का मतलब होता है कोई अपनी एक्सप्लेनेशन इंडिविजुअल, जो कि बेस्ड करती है रियलिटी पर, उस तरह से। लेकिन बिग बैंग थ्योरी इतनी भी रियलिटिकल नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट इसको इतना नहीं मानते। अब हम लोग दूसरी चीज बोलेंगे कि वैसे बिग बैंग थ्योरी को डिस्कवर किसने किया था। क्योंकि जब भी किसी इन्वेंशन की बात करते हैं ना हम लोग, तो हमेशा किसी के दिमाग में आ रहा होता है कि इसका फाउंडर कौन था, किसने बनाया था इसको। तो हमारा क्वेश्चन 2 बन जाता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बिग बैंग थ्योरी एंड वाई वॉज इट लेटर डिस्कार्डेड। हाँ दोस्तों, इट वॉज डिस्कार्डेड लेटर, लेकिन इसकी वजह भी हमें जाननी जरूरी है कि डिस्कार्ड हुई क्यों थी है। तो हम लोग बिगेनिंग से स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज लेमेट्रिया, जो कि एक क्रिश्चियन था, जो कि चार्ली और बेल्जियम में बॉर्न वो पैदा हुआ था 1882 में। वो जो है ना बेल्जियम कॉस्मोलॉजिस्ट था, कैथोलिक प्रीस्ट था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड ही हैड क्रिएटेड द आइडिया ऑफ बिग बैंग। उसी ने ये बिग बैंग का आइडिया बनाया था ज्यादा सोच समझ के, जिस पर जो दूसरे साइंटिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे लाइक बिग आर आर एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने भी फिर अपना आइडिया दिया। लेकिन जॉर्ज लिमेट्रिया जो है ना जून 20 1962 में चला गया, मर गया। मतलब उसकी इतनी ज्यादा नहीं थी, उसकी मोहलत नहीं थी, वो मर गया इस तरह से। और फिर जो है ना 2022 में या 23 में जाके कोई स्पेस वेब टेलीस्कोप बनी थी। 52 इयर्स लगे थे स्पेस वेब टेलीस्कोप को बनने में। और पता नहीं तकरीबन 17 या 18 करोड़ लगे थे इसको बनने में। ये एक जो है ना जैसे टेलीस्कोप होती है ना, जो कि बहुत दूर दराज की चीज देख सकती है, उस तरह से है। लेकिन जो है ना इसका जो फोम है, मटेरियल है ना, वो सन की रे से पिघल सकता है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने या नासा वालों ने ये किया कि इसके अंदर 5 तरह की लेयर्स चढ़ा दी। और जो है ना जो लेयर्स थी ना रबड़ की, उनको जो है ना सन की तरफ डायरेक्ट कर दिया, ताकि जो सन है ना वो रबड़ को फेस करके रिफ्लेक्ट कर दे उसकी हीट और रेज, जिस तरह से जो है ना वो फिर पिघल नहीं सकता उसका स्ट्रक्चर। और इस तरह से जो है ना जेम्स स्पेस वेब टेलीस्कोप तो वो चला कि अभी भी स्पेस में ही है वो, लेकिन उसने प्रूव किया है कि जो है ना कोई बिग बैंग हुई नहीं थी। लेकिन मेरे दोस्तों, उसने प्रूव कैसे किया? हाउ डिड ही प्रूव? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका क्वेश्चन का जवाब है कि जो है ना ये पास्ट में देख सकता है, 75 ईयर्स पास्ट में जा सकता है। पास्ट में जाकर मतलब फोटोज खींच सकता है वहां से। अब ये कोई इतनी ज्यादा वो वाली बात नहीं है, ये तो कॉमन बात है हमारे दरमियान। लेकिन इस तरह से इसने प्रूव किया है कि बिग बैंग हुई ही नहीं थी। जिस तरह से साइंटिस्ट का फिर ये अकीदा बन गया है कि जो है ना ये जो बिग बैंग है वो तो चार्ली ऑरी ने क्रिएट कर ली थी, लेकिन वो बनी नहीं थी। अच्छा ये इसका मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जो है ना एडविन हबल के बारे में। 2 मिनट। एडविन हबल ने जो है ना 2 इयर्स बाद उसने देखा कि जो है ना ये जो गैलेक्सीज होती है ना, जैसे मैंने अभी आप लोगों को टेलीस्कोप को बताया था कि ये दूर दराज की चीजें देख सकती है, इट कैन लुक वेरी फार अवे, इट इज वेरी फैंटास्टिक। And from telescope, honestly we can watch the planets from earth like Pluto, Mars, Saturn, these type of planets। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, अब आगे चलते हैं। एडविन हबल ने ऐसा क्या देखा था जो उसको इतना मशहूर बना दिया उसको। और फिर ये भी बना दिया, ये भी बताता चलूं कि जो है ना ये एडविन हबल जो है ना एक कॉस्मोलॉजिस्ट था, जो है जॉर्ज लिमेट्रिया की तरह। लेकिन उसने कुछ और ढूंढ लिया, उसने जॉर्ज लिमेट्रिया से अलग ही ढूंढ लिया। लेकिन उसने जॉर्ज लिमेट्रिया के ख्यालात को देखकर वही चीज ढूंढ ली जो जॉर्ज लिमेट्रिया ने ही ढूंढी थी। लेकिन जॉर्ज लिमेट्रिया के ज़माने में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसी वजह से वो उतना ज़्यादा नहीं देख सका।
स्पेस को। अच्छा फिर भी अभी मैं बताता हूँ एडविन हबल का। ये न्यूक्लियर इन्फो है। और एडविन हबल एक एस्ट्रोनॉमर होने के साथ साथ एक कॉस्मोलॉजिस्ट था जो गैलेक्सीज पर बहुत वर्किंग किया करता था और गैलेक्सीज को पढ़ा पढ़ा करता था। तो एक मर्तबा जब वो अपने टेलीस्कोप को लेकर आसमान में देख रहा था तो उसने बहुत सारी गैलेक्सीज को देखा। उसने ये देखा कि ये जो गैलेक्सीज है ना, दूर दराज की गैलेक्सीज, वो हमसे दूर होती जा रही है। और एक हल्की स्पीड पे नहीं बल्कि एक फास्टर एंड फास्टर, दे आर गोइंग वेरी फास्ट एट हाई एल्टीट्यूड। और जो हमारी करीब गैलेक्सीज हैं वो हमसे करीब आ रही हैं लेकिन वो बहुत हल्के हल्के आ रही हैं। इससे पता चलता है और इससे ये चीज बन जाती है कि कभी किसी जमाने में ये सारी गैलेक्सीज एक साथ थी, फिर ये एक्सपेंड होती गई, स्ट्रेच होती गई और अभी भी स्ट्रेच हो रही है। तो ये सारी चीजें। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैसे ये कायनात की शुरुआत हुई कैसे थी ये आप लोगों को बताऊं। अच्छा बिग बैंग का मायने भी बता देता हूँ। व्हाट इज बिग बैंग एक्चुअली। बिग बैंग आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्तों, बिग बैंग, बिग बैंग का मतलब है कि एक बहुत बड़ा धमाका। और धमाका जो है वो एक बड़ी चीज का हुआ है, बिग, ह्यूज। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि किसी बड़ी चीज किसी और बड़ी चीज से टकराई है। तो वो क्या चीज हो सकती है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे गैलेक्सीज होती है ना, आजकल भी यही साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं कि जो दो गैलेक्सीज होती है ना, अगर वो एक दूसरे से टकरा जाए तो पूरी चीज तबाह हो जाएगी, यानी सारे प्लैनेट्स ही तबाह हो जाएंगे। इसको कहते हैं बिग बैंग। इसका नाम इसीलिए बिग बैंग रखा गया क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ कोलाइड टकराते हैं और फिर इससे एक बहुत बड़ा दिमागा बन जाता है जिसको हम लोग यही बिग बैंग कहते हैं। तो ये सारी चीजें सुपर लॉन्ग टाइम बना लगाता है इन सारी चीजों को बनने में। और इस तरह से जो है ना बहुत ज्यादा वर्किंग की गई। और व्हाट एन आइडिया, ये मैंने अपने अपने ओन ख्यालात से लिखा है, व्हाट एन आइडिया, जिसको मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। द यूनिवर्स इज अ वेरी बिग प्लेस। वो बहुत बड़ी जगह है और उसको बनने में भी कुछ वक्त लगा होगा, लेकिन कुछ नहीं वक्त लगा, उसको ज्यादा वक्त लगा है। लेकिन आप लोगों को तो पता है अल्लाह ताला के बारे में, क्या अल्लाह ताला ने जो है ना कायनात बनाई है। तो अल्लाह ताला के लिए ये जो यूनिवर्स है ना, ये 6 दिन में बनी है। और जो हमारे लिए टाइम है ना, वो इतना ज्यादा है। लेकिन मैं अभी उसको सीक्रेट रखूंगा और अगले सेशन में उसको बताऊंगा, इसीलिए। अच्छा अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। एक मिनट। एक मिनट। जी, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब देना होगा। व्हाट इज बिग बैंग एक्चुअली। अपना कोई अपना हैंड रेज करे कोई और फिर उसका जवाब दे, अगर दे सकते हैं तो। या आप बता दें अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ। आप लोगों को अगर क्लियर, मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया, लेकिन आप लोगों को बात नहीं करना चाहते, लेकिन कोई बात नहीं। बिग बैंग जो है ना, मैंने आप लोगों को बताया था एस्ट्रोनॉमर्स ने ही बनाई है, वो एक्सप्लेन करने के लिए कि जो है ना यूनिवर्स बनी कैसे थी। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक हैरान कुछ बात बताता हूँ। द थिंग यू हैव टू लर्न, जो है ना आप लोग इस पे रिसर्च करिएगा कि जो है ना ये जो स्पेस है वो अभी भी स्ट्रेच हो रही है, मतलब बड़ी होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि स्पेस किसी जगह से शुरू हुई थी जहां पर जो है ना सारी जो गैलेक्सीज है ना वो एक साथ थी, जुड़ी हुई थी। वो इतने ज्यादा फैली भी नहीं थी, लेकिन हल्के हल्के जब ग्रेविटेशनल फ्रीक्वेंसी आती गई तो वो फैलती गई। इस तरह से ये सारी चीजें। तो आप लोगों को आई होप समझ आ गया है। ये हमारे सेशन का एंड है। अब हम लोग जो है ना कल सेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप बता दें। ये किसी का रेज हैंड हुआ है, सेक्शन ऑफिसर कोऑर्डिनेट।
मैं मोहम्मद हादी बोल रहा हूँ, मुझे करना है क्वेश्चन। जी बोले। गैलेक्सी क्यों हमसे दूर जा रही है? क्योंकि इसकी जो है ना शुरुआत एक बिग बैंग से हुई थी। अब आप लोगों को पता है बिग बैंग जब होगी, जब जैसे गाड़ियां टकराती हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, जब गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं तो उसकी कितनी बर्बादी होती है। वो उसका पूरा जो मलबा होता है वो बहुत दूर दूर तक फैलता है, वो आग लग जाती है वहां पे। तो सोचें अगर कोई पत्थर दूसरे पत्थर से बहुत जोर से आते हुए टकराए फायर की लाइट की स्पीड से, तो इसके बहुत बड़ा कैसे धमाका होगा। जैसे मिसाइल आके टकराता है किसी जगह से, उस तरह से एक रॉक है जिसको हम लोग आजकल एस्ट्रॉइड्स या कॉमेट्स भी बोल सकते हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि हम लोग देखते हैं जब स्पेस पे तो एक जोरदार चीज हमारे ऊपर से गुजरती है इस तरह से, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए। तो उस तरह से हुआ ये था कि बिग बैंग में भी इसी तरह से दो कॉमेट्स टकराई थी या दो गैलेक्सीज टकराई थी, जिससे इतनी जोर से वो टकराई थी कि वो ऐसे स्प्लिट हुई कि अब वो एक्सपेंड होती रहती है। यानी इससे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे गैलेक्सीज एक साथ थी, लेकिन किसी ऐसे अननोन वाकये के जरिए जिसमें दो कोलिशंस हो गई थी, उसकी वजह से पावर जो थी ना वो दोनों के अंदर लगी और वो दोनों एक ऐसे टकराते हुए स्प्लिट हो गए। और जब स्प्लिट हुए तो आप लोगों को पता है कि फोर्स तो हर जगह फैलती है, जैसे सुनामी आता है तो सुनामी तो अपनी बर्बादी हर जगह फैलाता है, तो उस तरह से सारे प्लैनेट्स हल्के हल्के टूट गए थे। उस तरह उस वक्त टूट गए थे अचानक से, लेकिन फिर हल्के हल्के वापस बनते गए। मैं आप लोगों को इसके बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमारे ओरिजिनल एंसेस्टर्स हमारे मतलब हमारे बाबा और हमारे मामा तो वही थे ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन हमारे ओरिजिनल एंसेस्टर्स भी थे जिसकी वजह से हम लोग पैदा हुए थे, और वो थे एटम्स, जिसके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फोर्स है उसकी वजह से सारे प्लैनेट्स स्प्लिट हो गए थे, क्योंकि जो दो कॉमेट्स थे वो जब टकराए थे एक साथ, तो जब वो स्प्लिट हुए थे तो जो वो 100 पीसेज में वो स्प्लिट हो गए थे ना। 1 मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूँ। हादी हैदर, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो स्प्लिट हुए थे, तो इस तरह से वो फिर अगले दूसरे प्लैनेट्स में या कॉमेट्स में जाके टकराए थे, जिसकी वजह से वो फिर टूट गए थे। फिर वो हल्के हल्के ग्रेविटेशनल पावर आती गई, ग्रेविटेशन की ही वजह से आजकल जो है जो प्लैनेट्स है ना वो या कॉमेट्स हैं वो जो है ना घूम रहे होते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया। हादी हैदर अगर आप कुछ बोलना चाहते तो आप बता दें। मुझे क्या मुझे कुछ आपको अगर कुछ बोलना तो बता दें। एनी क्वेश्चंस, वरना फिर मैं रैप अप करूँ। मेरा नाम मोहम्मद आदी है, मुझे नहीं पता था बिग बैंग क्या है। अभी मैं बिग थोड़ी देर बैंग पहले ही आई। बिग बैंग तो वैसे क्रिश्चियंस ने बनाई है, लेकिन अभी भी जो है ना वो डिस्कार्ड, मैंने आप लोगों को बताया था डिस्कार्ड हो गई है। मैं आप लोगों को उसके बारे में इतना नहीं बताया। मैं कह रहा था कि वो जो बिग बैंग है ना वो डिस्कार्ड तो हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं हुई। मैंने आप लोगों को बताया था जेम्स स्पेस वेब टेलीस्कोप है, इसकी वजह से वो डिस्कार्ड हो गई थी। तो इसलिए जो है ना, लेकिन अभी भी फिर भी डिस्कार्ड नहीं हुई, इसलिए हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। जी अदीला फातिमा आंटी, अगर कुछ कहना चाहते तो बता दें। अगर नहीं कहना चाहते तो फिर मैं अलमास आंटी, आप रेज हैंड करनी है। बिग बैंग डिस्कार्ड क्यों हुई थी? बिग बैंग हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था, बिग बैंग जो है ना दो पत्थरों के टकराने की वजह से हुई थी, इस तरह से वो टकराए थे। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, हम पूछ रहे हैं कि बिग बैंग डिस्कार्ड क्यों हुई थी, क्यों डिस्कार्ड हो गई थी? वो बिग बैंग इसलिए डिस्कार्ड हुई थी क्योंकि पता नहीं नासा ने जो है वो कोई स्पेस वेब टेलीस्कोप बनाई है जो है ना पास में देख सकती है बैटरी, तो जो है ना जो पास्ट में वो देख सकती है, तो इसलिए वो 75 ईयर्स ओल्ड पहले भी देख चुकी है। तो जो है ना हम लोग मानते हैं कि 75 ईयर्स ओल्ड पहले यानी इतने ज्यादा वक्त पहले जो है ना नहीं बनी थी गैलेक्सी, लेकिन उसने वहां से भी पिक्चर्स ली हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स पहले, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 ईयर्स पहले गैलेक्सी बनी थी, और हम लोग कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो है पास्ट से पिक्चर्स ले सकती है। और वो अगर फॉर एग्जांपल इंसिडेंटली वो 2 ईयर्स पहले नहीं बल्कि 4 ईयर्स पहले की पिक्चर ले ले, तो हमें तो यही लगेगा ना कि 2 ईयर्स पहले नहीं 4 ईयर्स पता नहीं कभी दुनिया शुरू हो गई थी इस तरह से।
तो जो है ना वो उस तरह से साइंटिस्ट ने जब ये चीज़ बनाई तो इसी चीज़ को प्रूव किया। ये स्पेस वेब टेलीस्कोप है, उसने वो ऐसे ह्यूमन नहीं है, उसका नाम जेम्स रखा हुआ है, लेकिन तो वो एक टेक्नोलॉजिकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, जो है ना ये इन्होंने बनाई हुई है नासा वालों ने, इसी ने प्रूव किया है। लेकिन अभी हम इसको इतना मानते नहीं है क्योंकि जो है फिर भी ये बहुत ज़्यादा मतलब रीजनेबल जो है आप कह हम लोग कह सकते हैं थ्योरी है। और कोई क्वेश्चन? सेक्शन कोऑर्डिनेट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है। नहीं बोल रहा हूँ कौन सा कल टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग कल भी यही पढ़ेंगे क्योंकि कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लैक होल्स, एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट्स, कॉमेट्स ही कैसे बने थे, और ये भी बताऊंगा कि टाइम कितना है, कैलकुलेशन से भी टाइम पता चल चुका है। और आप रिसर्च भी करिएगा बिग बैंग थ्योरी पर, उसकी वॉइस भी पता चल चुकी है साइंटिस्ट्स को। मतलब जब बिग बैंग टकराती है, जैसे गाड़ी टकराती है तो उसकी हमने रिवील वॉइस। किया। जी हमने रिवील की। हाँ, कर दी। अच्छा फिर मैं देखूँ। और कोई क्वेश्चन? नहीं। अगर नहीं है तो फिर मैं रैप अप करता हूँ। है क्वेश्चन और कोई? ये बिग बैंग थ्योरी दो कॉमेंट्स फटे थे तो बनी थी या दो गैलेक्सीज फटी थी? ये इतना वो कॉमन या पॉपुलर नहीं है क्योंकि जो है ना अभी इस पर भी वर्किंग्स चल रही हैं। कुछ कहते हैं कि गैलेक्सी टकराई थी, कुछ कहते हैं कि एस्ट्रॉइड या कॉमेट्स टकराए थे। वैसे मैं दोनों के साथ ही हूँ क्योंकि दोनों मतलब जो है ना दोनों लोगों के साथ। क्योंकि जो है ना मुझे ये भी अच्छा सही लगता है बिल्कुल कि जो है ना कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड एक साथ टकराए थे, और ये भी बिल्कुल ये रीजनेबल लगता है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराई थी। क्योंकि आजकल के ज़माने में हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी देख सकते हैं कि जिससे जो है ना हम ये दोनों टकराए थे, गैलेक्सीज या कॉमेट्स वगैरह। और टेलीस्कोप कब बना था? टेलीस्कोप तो अब नया नया बना है, बस एक दो साल नहीं हुए। यानी कि साल बना था। 22 या 23 में बना था। 2000। वो जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं ना? जी वो जो दूर से दिखाता है प्लैनेट्स को। वो 22 या 23 में बना था, मतलब दोनों के मिडिल में बना था। और कोई क्वेश्चन है? तो वो भी नहीं दिया। अगर नहीं है क्वेश्चन तो फिर मैं चलता हूँ, मैं रैप अप करता हूँ। मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, कल भी सेशन है। फीडबैक आप दे दें। आई होप यू लाइक द सेशन। चलिए फिर मैं चलता हूँ। नाउ आई हैव टू लीव। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। We will have the session as well tomorrow at the same time. Allah Hafiz.